हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं नए टॉपिक के साथ सरफेस केमिस्ट्री के हाजिर हूँ और वो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। टुडे आई विल सी हाउ द मिसल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बिफोर दैट, what type of compound forms micelle we will see। तो बच्चों, एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर वाले टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। तो देखते हैं यहाँ पे मिसल्स कैसे बनते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल सोप लेते हैं। सोप क्या होता है? फैटी एसिड साल्ट ऑफ सोडियम, इससे बना होता है फैटी एसिड साल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। ओके। अब यहाँ पे ये फैटी एसिड कौन सा है? हम उसको लेते हैं सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट। फार्मूला C17H35 COONA। This is the formula of sodium stearate. Now we will see the structure of stearate, STEARATE, stearate. Formula of this is the C17H35 CONA. Now you can see the structure of the sodium stearate. 1 2, suppose carbon number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. Then COONA. This one is the 8 9 10 11 12 13 14 15 16th and 17th carbon. Okay, this is the large structure of stearate, sodium stearate. Sodium stearate have two parts. One is the hydrophobic, which is made up of hydrocarbon, and another is the hydrophilic part. It is made up of acetic acid part and sodium. Now see here, this one is the hydrophobic. What? Hydrophobic. Okay, and this one is the hydrophilic. What? Hydrophilic. And I hope all of you have remembered that what is hydrophobic and hydrophilic. Hydrophobics are those which do not dissolve easily in the water or liquid. Okay, and hydrophilic is that which can easily dissolve in water or proper solvent. Okay, thus the sodium stearate
have two parts. One is hydrophobic part, which is a hydrocarbon, and this one is the hydrophilic part, which is water soluble. Okay, now we will see the structure once again. Here, this one is the non-polar part. What is non-polar part? I will erase this. Take a screenshot or note down it is very fastly. Now see here. Formation how takes place. First of all, I will tell you completely the structure of this sodium stearate. This part is known as hydrocarbon. And this is also known as tail. Okay, and this part is ionic part, and it is known as head. Thus the fatty acid salt have two part. This is the soap. This one is also known as soap. SOAP, soap. This whole structure represents what? Soap. And soap has two parts. One is hydrophobic, that is hydrocarbon. It is also known as tail. Okay. And other is the hydrophilic, and it is ionic, it is water soluble, it is also known as head. What known as head? I hope all of you understand the structure of soap. Okay, student, now you can note down. Okay, now we will see how the micelle formation takes place. Okay, okay. One thing note down, that solution of soap has, as you know that soap has two parts. One is ionic and another is what? Non-ionic, non-polar part. Okay. If we add soap in little amount, it behave as electrolyte. In small amount soap or detergent is different from the soap. Detergent is the different from soap. It is a type of benzene sulfonic acid. Or it is a type of long chain alcohol. Okay, but both are the different, but their function is like each other. So we will see here a small amount of soap work as
electrolyte, okay. And this condition, when you dissolve it in the solution, okay, such as water, suppose this is the water, whatever I am representing here, that is the water, okay. Now when we will add soap, what? Soap in a small amount, then what will happen? Soluble part of the soap will be inside the water, and hydrophobic part will be on the surface of water. This is the condition when we add soap in very small amount, okay. Then we have like electrolyte, and structure of electrolyte inside water is like this, okay. बच्चों, जब हम सोप को स्मॉल अमाउंट में पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करता है, और उस कंडीशन में उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इनसाइड वाटर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, और ये सरफेस के ऊपर होता है। तो इस कंडीशन में ये कहीं मिसेल फॉर्मेशन नहीं करेगा, कहीं एसोसिएशन नहीं होगा। अब जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, एग्रीगेट होना शुरू कर देंगे। लेकिन याद रखिए, हम जब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो केवल वहाँ पे वाटर है, मीन्स कहने का क्या है, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और ये कंटेनर के अंदर हम स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ देखेंगे। ये हमारा वाटर है, वाटर 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 है ये पूरा। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा विजिबल सा बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा मेरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर रहा, ओके। ये होता क्या है कि जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं बच्चों, क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करना शुरू करते हैं। क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी अदर पार्टिकल्स नहीं है एक्सेप्ट सोप, तो इस कंडीशन में जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है अभी भी सरफेस की साइड में होगा, और जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है अभी भी सरफेस की साइड में होगा, और जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इनसाइड वाटर होगा और एक सर्कल का रूप ले लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये हमने एक इमेजिनरी सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं तो ये साफ दिखाई देगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा जो हेड पार्ट है वाटर सॉल्युबल है और ये इस तरह से एग्रीगेट हो जाते हैं, और ये जो पूंछ है वो अंदर की साइड में आ जाएगी, देखते रहिए। ये हमारा निगेटिव पार्ट है इसका, और ये सरफेस पे यहाँ पे लग गए, और इसकी जो पूंछ है सब एक साइड में हाइड्रोफोबिक है, डरे हुए हैं, पानी से डर के अंदर की ओर आ गए हैं, और ये अंदर की ओर सब छिप गए हैं। और इस तरह से एग्रीगेशन होकर के मॉलिक्यूल जो है
कोलाइडल रेंज में आते हैं और उस कोलाइडल रेंज में आकर के मिसल्स बना लेते हैं। तो एक बार तो ये हो गया हमारा मिसल फॉर्मेशन, और इसमें हम याद रखेंगे कि ये जो हमारा मिसल बना है ये मिसल्स विदाउट डस्ट है। अभी यहाँ पे हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, तो केवल हमने मिसल फॉर्मेशन किया है विदाउट ऑयली डस्ट। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा मिसल कैसे बना। जैसे ही कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया, क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन बढ़ाते ही जो उसके मॉलिक्यूल हैं सोप के एग्रीगेट होने लगे, और एग्रीगेट होकर के क्या किया, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो अंदर सब डर के चले गए, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो पानी के अंदर घुल गए थे। ठीक है, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन गया वो क्या हो गया, मिसेल हो गया। अब ये बन गया हमारा मिसेल। तो यहाँ पे ये क्या है, लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन। ओके, ये हाई कंसंट्रेशन। आई होप ये मिसल फॉर्मेशन समझ में आ गया सबको। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप समझ गए, तो अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप मगर इसे नोट कर लीजिए, नोट बनाते चलिए, नोट्स हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ओके, चलिए तो अब हम लोग सोप देखते हैं। चलो भैया देखते हैं कैसे सोप काम करता है। ये तो पहले इसको क्लियर कर लें। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ओके, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे कहने का मतलब है किस तरह से सोप जो है सफाई करता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। अब देखो भाई, हमने पहले बता दिया मिसल के दौरान, मिसल फॉर्मेशन के दौरान कि सोप के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो तो वाटर सॉल्युबल नहीं होता लेकिन ऑयल सॉल्युबल होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक हमने बताया था। तो लाइक डिजॉल्व लाइक में अगर ऑयल के कांटेक्ट में हाइड्रोफोबिक पार्ट आएगा तो वो उसके साथ मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर के कांटेक्ट में हमेशा क्या होगा, वाटर से दूर भागेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्लींजिंग एक्शन होता है। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई कपड़े का टुकड़ा है, या सपोज करो ये कपड़ा ही है, यानी क्लॉथ है, ये ऐसा क्लॉथ जिसके ऊपर
ऑयल या ग्रीस लगी हुई है, ऑयल इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ऑयल या ग्रीस लगी हुई है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सपोज ये सरफेस है और यहाँ पे ऑयल है। अब इसके बाद ये हमारा सरफेस सूप सॉल्यूशन के अंदर है, सूप सॉल्यूशन के अंदर है, ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड ऑयल चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, अपनी बिरादरी मिल गई है, सब अपनी बिरादरी में घुल जाते हैं और ये भी अपनी बिरादरी में जाके घुल गए। सबका नेचर यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका नेचर वही है जो ऑयल का है। तो ऐसे कंडीशन में ये अंदर की ओर चले गए और जो इसका आयनिक पार्ट है ऊपर की ओर है। अब जब हम इसको एजिटेट करेंगे, केवल सोप में डाल दिया तो साफ नहीं हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एजिटेट करेंगे। जो वॉशिंग मशीन करती है, राउंड 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 घुमा देती है तो मिसल्स क्या होते हैं, बाहर निकल लेते हैं, यानी सफाई हो जाती है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा क्लॉथ है। अब इसके बाद आफ्टर एजिटेशन, सोकिंग करने के बाद क्या हुआ, सोकिंग करने के बाद ये जो है मिसल्स बना, ये हमारा ऑयल पार्टिकल है और इसके अंदर जो है कि इसके अंदर ये हो गया। अब ये पूरे टेल पार्ट अंदर जा चुके हैं और एजिटेशन के कारण कपड़े से अलग हो चुके हैं और इस तरह से सफाई हो गई है। और ये हमारा है मिसल विथ ऑयल, मिसल्स विथ ऑयल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ बना लिया मिसल्स विथ ऑयल, कपड़े की हो गई सफाई। तो पहले हमने क्या बताया कि पहले जब हम ऑयली क्लॉथ को, स्टेन क्लॉथ को जब हम सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो जो है कि ऑयल के अंदर चला जाता है और जो उसका पोलर पार्ट होता है वो बाहर की ओर होता है। और फिर जैसे हम एजिटेट करते हैं तो वो कैसे हो जाता है, इस तरह से, और इस प्रकार से कपड़े की सफाई हो जाती है। तो ये हो गया मेरा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ओके, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे कि जो मैंने बताया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड का प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उस चीज का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जानेंगे। वी विल नो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। तो अगला हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। ओके, चलो भैया, अब हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग हमारी होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
ऑफ कोलाइड। ओके, तो अब नए टॉपिक के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हम लोग देखेंगे किस तरह से कोलाइड बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह के कोलाइड को बनाएंगे। अगर हमारे पास दो हैं, एक तो लायोफिलिक है, एक लायोफोबिक है। क्या है? लायोफिलिक और लायोफोबिक है। तो अब लायोफिलिक का मतलब हमने क्या बताया था? लिक्विड लविंग। लिक्विड लविंग। तो उसको बनाने के लिए हमें कोई मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप वो जा करके मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम अपने किसी रिलेटिव के पास या फंक्शन में जाते हैं, अपने ही क्लोज रिलेटिव के फंक्शन में जाते हैं, तो हमें कहना नहीं पड़ता है, हम अपनी पोजीशन ले लेते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो हम क्या होते हैं? सबसे अलग पड़े रहते हैं, और फिर हमें मिलाने के लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो कोई ले जाएगा और हमें मिलाएगा कि ये देखो ब्रजेश सर है, ठीक है। तो वो इंट्रोड्यूस होंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिले होंगे, और उसके बाद काम खत्म होते हुए धीरे से सरक लेंगे। समझ में आई बात? तो हाइड्रोफिलिक में क्या है? हाइड्रोफिलिक में तो सब एक जैसे अपने हैं, तो वहां अपने आप जाकर के मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइड्रोफोबिक में क्या है? लिक्विड हीटिंग है, वो तो मिलने वाला है नहीं, अब मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन करने के लिए फिर मेथड्स लगाने पड़ेंगे, तरीके लगाने पड़ेंगे, तब जा कर के सॉल्यूशन बन पाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड से। तो स्टूडेंट, यहाँ है आपके सामने डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, और हमने बता दिया कि हमें किस तरह का कोलाइड बनाना है। किससे बनाना है? हाइड्रोफोबिक को लेकर के। हाइड्रोफिलिक तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक से कैसे बनाएंगे, उसके 3 मेथड हैं। अभी हम ब्रीफ में ऐसे बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल उसको लिख करके और जो है कि फिगर के थ्रू देखेंगे। ओके, तो लीजिए देखते हैं। यहाँ पे पहला मेथड है डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन मेथड। तो ये 3 मेन तरीके हैं, डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड एंड केमिकल मेथड। तो डिस्पर्सन मेथड में 2 चीजें हैं। एक तो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, उनको हम कोलाइडल मील्स में डाल करके कोलाइडल रेंज में तोड़ देते हैं। जैसे ही हम लोग आटा चक्की जानते हैं, फ्लोर मिल। फ्लोर मिल में क्या होता है? गेहूं डाल देते हैं, वीट डाल देते हैं, और आटा फ्लोर निकल करके बाहर आ जाता है। क्या होता है उसमें? 2 जो है कि स्टोन के सर्कुलर व्हील्स होती हैं, जिनके बीच में गेहूं क्या है? पिस जाता है, और पिस करके आटे के फॉर्म में हो जाता है। थोड़ा उसकी साइज और छोटी करेंगे तो क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है। चने का बेसन भी इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से वैसे ही क्या होगा? वैसे ही यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स को कोलाइडल मील में डालते हैं, और वो कोलाइडल मील उसे क्या करता है? कोलाइडल रेंज में ला देता है।
ब्रैग्स मेथड, इसको इलेक्ट्रिकल मेथड कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो है कोलाइडल रेंज में पार्टिकल्स को लाते हैं। कंडेंसेशन मेथड में हमारे तीन है, पेप्टाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग। इन तीन मेथड से हम हाइड्रोफोबिक को कोलाइडल रेंज में ले आएंगे। इसके बाद केमिकल, जो हमारा केमिकल मेथड है, ये रिएक्शन मेथड है। इसमें हमारा आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड डबल डीकम्पोजिशन। तो बच्चों, इन सारी हेडिंग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और फिर इसे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।